Good morning, students. Now we will learn magnetic field at a point on the axis of a circular coil carrying current. In the previous lectures, we have studied magnetic field due to a straight wire and due to a circular wire. Magnetic field due to a straight wire, in that topic, we have calculated magnetic field at the center. But here, we will calculate magnetic field on the axis. See here, what is the meaning of magnetic field on the axis? Suppose this is a circular coil. In the topic magnetic field due to a circular coil at the center we have calculated. At the axis means, see this line here, this is called the axis. So here we will calculate, suppose this is our circular coil, and we will calculate magnetic field either this point, here, at any point. Okay. So, and this topic is this derivation is three-dimensional derivation. Let us see how the things can be analyzed in this topic. Okay. So let us see the magnetic field at a point on the axis. See, this is your circular coil. Current is flowing in this way. So we have learned first I will complete the diagram. Here on the axis we have to find out the magnetic field. Let us consider the circular coil. It is of radius a. Here at this point is at a distance x. Okay. So we have studied in the Biot-Savart law that in order to find the magnetic field at the point A, first we will divide the current carrying loop into number of small elements. Okay. So here we have taken, this is the point C, and here we have taken one small element dl. Okay. So the magnetic field due to this element at the point B due to Biot-Savart law. So according to Biot-Savart law, dB is equal to how much? mu0 upon 4 pi I dl sine 90 upon r. Why I have written 90? Because here, see, the angle between dl and r is 90 here. Let us analyze how. See, our topic, the magnetic field at a point on the axis, it is like this. The coil is perpendicular to the plane of the paper, or it is perpendicular to this one blackboard. Okay? And here we have to find the magnetic field on the axis. कॉइल कुछ ऐसा है और हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसके कारण से. ठीक. अब देखो ये वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? इधर. तो इस एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो इसके परपेंडिकुलर आएगी. ठीक है नहीं? इसके कारण जो रेडियस वेक्टर है इसका डायरेक्शन यहाँ रहेगा, और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो किधर आएगी? इस डायरेक्शन में. समझो जरा इसको ऐसे. देखो ये डायरेक्शन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी अगर आप देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो करंट की डायरेक्शन है वो किधर है? इधर है. रेडियस वेक्टर किधर है? इधर है. तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो उसी साइड आएगी. ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ये इसी साइड है. वो डायरेक्शन इधर है, रेडियस वेक्टर इधर है, तो जो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस एलिमेंट के कारण वो इधर होगा. सेकंड समझेंगे ये 90 कैसे होता है. देखो जी 90 ऐसे होता है कि ये हम बात कर रहे हैं, देखो ये इसका रेडियस है और ये dl, हमने जो पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड बायोट-सावर्ट लॉ में, वो dl और r के बीच में एंगल है वो हमेशा 90, चाहे वो ऐसा रहेगा चाहे ऐसा चाहे ऐसा,
ये हमेशा ये जो एंगल होगा ये 90, ऐसा नहीं कि ये पूरा एंगल 90 है, ऐसा नहीं है। दिस इज द एंगल बिटवीन DL एंड द दिस वेक्टर, ठीक है। So this is how much? This is A, this is X. So this is how much? A square plus X square. और ये R की जगह पे क्या आ जाएगा? म्यू अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर होता है ना जी, not R. So R square, that means A square plus X square. Now, as this coil is symmetrical, so magnetic field due to this element also. अब यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन किधर होगी, इधर, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो किधर आई, dB उधर। इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर जब निकालेंगे तो ये x है, ये a है, तो ये कितना आएगा, √A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ओके, तो इसको मानते हैं dB डैश। तो इसका कहाँ आएगा, इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आया dB डैश। तो dB डैश इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई IDL अपॉन A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। देखो यहाँ पे ठीक कर लो, IDL अपॉन A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एलिमेंट करंट सेम आ रही है, तो क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे। सो ये कितना एंगल है, मान लिया फाई है, ठीक। तो एक मैंने परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप किया, तो ये फाई है, तो ये भी कितना है, फाई। कैसे, देखो जी, ये फाई है तो ये आपका परपेंडिकुलर है एक्सिस पर, तो ये फाई है तो ये कितना हुआ, 90 माइनस फाई। रेडियस वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों आपस में 90 है, तो ये 90 माइनस फाई, तो ये कितना हो गया, फाई। ओके, तो ये फाई हो गया। तो जब हम रिजॉल्व करते हैं तो ये कितना लिखते हैं, dB cos फाई, और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, dB sin फाई, ठीक। इसके कारण से ये फाई है तो ये एंगल भी क्या होने वाला है, फाई। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, dB डैश cos फाई, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, dB डैश sin फाई। देखो जी, ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट कर जाएं, क्यों, dB डैश और dB दोनों का मैग्नीट्यूड देखो सेम है, सिर्फ डायरेक्शन ही अलग अलग है। तो देखो ये दोनों आप कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी पूरे के कारण वो कैसे आएगी, इंटीग्रेट कर लेंगे, वो कितना आ जाएगा, dB sin फाई। तो इसको हम लोग कर लिया इंटीग्रेट, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा B, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dB sin फाई। तो dB कितना आएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई IDL अपॉन A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, और sin फाई कितना आएगा यहाँ पे, sin फाई इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज A अपॉन √A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। देखो सारी चीज़ें कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा, DL। तो DL का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, अगर DL पूरा जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2 पाई A। सो म्यू 0 अपॉन 4 पाई IDL का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 पाई A इंटू A अपॉन A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर होल 3/2, ठीक है। अब इसको ठीक से लिखो जरा, कितना आ जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई A स्क्वायर I अपॉन A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर होल 3/2। और अगर कॉइल के अंदर n टर्न्स है तो n मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल ऑन द एक्सिस, ठीक है। म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई A स्क्वायर I इंटू n इज द नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर होल 3/2। Now we will see the cases. First is case number 1. केस नंबर 1 है कि जैसे
हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल ऑन द सेंटर। अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे ना निकाल के मैं सेंटर पे निकालता हूँ तो x कितना हो जाएगा 0, उसमें x कर देना 0, कितना आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई a स्क्वायर i इंटू एन अपॉन कितना हो जाएगा x अगर 0 हो जाएगा तो a क्यूब हो जाएगा, a क्यूब इससे ये कटेगा तो कितना बचा, तो b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन ए। ये क्या रिजल्ट आया, दिस इज द रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल, दिस वी हैव डिराइव्ड प्रीवियसली। ठीक है, बी म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल जो हमने पहले निकाला था। अब अगर ये मानो कि फर्स्ट केस था सेंटर पे निकालना है, अगर ये मानो कि बहुत ये जो x है ना ये बहुत ज़्यादा है, केस नंबर 2, केस 2 when x is much greater than a, यानी ये बहुत दूर है तो रेडियस क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, सो वी कैन नेग्लेक्ट। तो b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई a स्क्वायर i इंटू एन अपॉन, अगर x इसकी तुलना में अगर ये ज़्यादा हो जाता है x तो a का क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा x क्यूब, ये आपका बन गया x क्यूब। अब देखो एक करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है क्या, जी हाँ बिल्कुल करता है। कैसे, अगर ये करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह, और अगर दूसरे साइड से देखेंगे, अगर एक साइड से देख रहा हूँ और एंटी क्लॉकवाइज है तो दैट इज बिहेविंग लाइक अ नॉर्थ पोल, एंड इफ वी आर लुकिंग फ्रॉम द अंदर साइड इट इज बिहेविंग लाइक अ साउथ पोल। ठीक है, सो इट इज बिहेविंग लाइक अ डाइपोल। अगर मैग्नेटिक डाइपोल है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा इसका। लेट अस सी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो बी म्यू 0 अपॉन 4 पाई, मैं जानता हूँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जब करंट एरिया होता है तो आई इंटू एन, और अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो आई एरिया इसका क्या हो जाएगा पाई ए स्क्वायर इंटू एन, तो आई पाई ए स्क्वायर एन। ठीक है, तो इन सब के जगह पर क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द डिस्टेंस इज मच मोर देन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। ठीक है, तो 2m, वेयर व्हाट इज m हियर, m इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। केस 3, केस 3 में क्या है कि जब x इक्वल टू a है, अब जब x इक्वल टू a है तब यहाँ पे देखो क्या आएगा, x इक्वल टू a है तो b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई a स्क्वायर i इंटू एन अपॉन a और x बराबर कर दो कितना आ जाएगा 2, ऐसे आएगा ना 2a स्क्वायर होल 3/2। एक काम करो 2 पाई से इसको कट कर देंगे, ये कितना बच जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है जी, तो ये कितना आ गया म्यू 0 अपॉन 4 पाई a स्क्वायर i इंटू एन अपॉन 2 के पावर, ये कितना बचेगा 5/2 इंटू a के पावर 3। तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। ठीक, ओके, थैंक यू।